Namaskar everyone, Jai Gurudev, and welcome to our session today. First of all, let me wish everyone a very happy Independence Day. On this Independence Day, let's pledge to get independent not just from our economic and social bondages but also the mental bondages, also our fears, our stigmas, our taboos, right? So let's pledge on our Independence Day. It's a very uh, prominent day and a pious day for all of us, all Indians globally. So let's pledge on this day to fight it out our mental health as effectively as we are fighting out our physical health during these crisis days. So first of all, thank you Dr. Harish Rawat for organizing this first of its kind webinar event that's happening all throughout the month of August. It's a first online webinar which talks about our mental health, our not just our physical well-being but our mental well-being. Dr. Harish, as we all know, he is a gem of a person, and any words are very less for him. He holds a Guinness Book of World Record. His name is in Limca Book of Records. So it's really amazing to be invited by him to take a session. Myself, Aprajita Prasad, and I am a certified life coach, and I have been taking sessions to improve your ways how you handle life. Professionally, I have been a business consultant for more than 15 years and do business consulting, hardcore business tactics and things. But after having gone through the pressures in life, that's where I realized I need means and techniques to equip myself to go through that stress and pain. Dr. Harish and I, we met together, I think more than 12-15 years ago, when we were both working with one of the firms which is globally known, TCS. And those were our early stages of career, and we used to talk a lot about different things. Much later in our life, we all moved in different directions. But one thing that kept us together has been this thread or this positivity that we want to spread across. He is into laughter yoga, which is a very nice way to de-stress yourself. I have read his books, I have attended his workshops, and I feel that with his laughter yoga technique and therapies, he is somebody who is helping others in a lot more better manner. Now if we come to what I do, I'm not sure about the kind of audiences we have, so I would like to keep it in a very mix of a language, Hindi और English दोनों में मिला के करती हूँ, so that it is best for everyone. In case you find anything that's not understandable, या कहीं पे आपको लग रहा है कि किसी और लैंग्वेज में बात किया जाए, या कोई क्वेश्चंस है या क्वेरीज है, feel free to drop a message in the comment box. So I'm taking a look into the comment box as well. So I would love to, answer all your queries. So now, in this 1 month, the month of August, what Dr. Harish had in mind to bring together, a lot of different panels all throughout the month in different weekends. We have been doing things to talk about this mental health or how we de-stress ourselves, different techniques, different methodologies. So now let's understand first what is mental health. Right? It's very important to understand mental health, and then as a life coach, I would talk about the ways and therapies that we can do with NLP and life coaching. And guys, trust me, ये NLP which is neuro linguistic programming और life coaching, ये सिर्फ और सिर्फ आपके life को ओवरऑल किसी एक एस्पेक्ट से ये नहीं है कि आज आप डिप्रेशन में हो तो आपको बाहर निकालना है. इट्स लाइक अ वे ऑफ लिविंग. वी नीड टू जस्ट लाइक हम कोई भी डाइट पे जाते हैं, ये नहीं है कि 2 दिन करो इट वुड बाउंस बैक. इट बिकम्स अ वे ऑफ लिविंग. अगर आप उसको कंटिन्यूसली फॉलो करोगे, अपनी दिनचर्या को उस हिसाब से ढालोगे, अपनी सोच को ढालोगे, तभी कोई भी थेरेपी, कोई भी टेक्निक आपको फ़ायदा कर सकती है. राइट. सो नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड
first what is mental health, the impact it has, more so in this time, crisis time. Humankind has never seen something like this, the pandemic corona, we are all aware of it, and the kind of social isolation we are living. So इस social isolation में क्या हो रहा है, हमारा stress level और बढ़ रहा है. एक तरफ हम लोग एनी हाउ बहुत ही न्यूक्लियर फैमिलीज और स्ट्रेसफुल लाइफ में जा रहे हैं, और यहाँ सोशल आइसोलेशन भी हो रहा है. सो हाउ डू वी डील विद दीज थिंग्स, राइट? सो लेट्स फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंटल हेल्थ एंड व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन अस. If I have to quickly tell you what is mental health, so it includes our emotional, physiological and social well-being. It affects the way we think. कभी कभी आप देखते हो कि आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो या डिप्रेशन में हो या एंजाइटी में हो, तो एक छोटा सा सिंपल काम जो आप अदरवाइज मे बी जस्ट एक तैयार होना, एट टाइम्स इट बिकम्स लाइक अ ह्यूज टास्क वी आर नॉट एबल टू डू. एंड a lot of us have at some point in our life, including me, we have gone through some bit of mental crisis, be it depression, anxiety, panic attack, whatever, stress, eating disorder. All these are small things which is a part of our mental health, right? And it also helps determine how are we going to deal with it. जब तक हम प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, हम उसका सोल्यूशन कभी नहीं निकाल सकते हैं. द फर्स्ट स्टेप इन एनी प्रॉब्लम सोल्यूशन इज, पहले आप एज ह्यूमंस वी आर इन अ स्टेट ऑफ डिनाइल, और वो डिनाइल से हम पहला स्टेप है जब आप एक्नॉलेज करते हैं, राइट? सो कोई भी क्राइसिस आता है, आप डिनाई करते हो, फिर आप एक्नॉलेज करोगे. एक्नॉलेज जब कर लोगे, तब द थर्ड स्टेप इज वेयर योर हीलिंग स्टार्ट्स, वेयर योर मेडिसिन स्टार्ट्स. सो सबसे पहले है इस बात को, इस स्टिग्मा को, ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे आई वांट टू टॉक अबाउट दैट सोशल टैबू, जो स्टिग्मा अटैच्ड है मेंटल हेल्थ से. इट्स नॉट दैट बिग अ डील. I have gone through a lot of times of stress, anxiety, depression. We all go through. I know a lot of people जो इसमें battle भी करते हैं. So अगर हमें ये acknowledgement होगा, support होगा, तब हम बहुत अच्छे से उसको deal कर पाएंगे. Then if we remain in denial and suffer, right? Overall in our course of life, if we express or experience mental health, हम सोचते हैं कि ये मूड स्विंग है, बिहेवियरल चीज़ है, घर में किसी को भी बोलो या सीनियर्स इन द फैमिली, दे वुड से उठो, ये क्या हाल बना रखा है, आप तैयार हो जाओ, अच्छा लगता है, ये आप लेज़ी हो. बट द ट्रुथ इज इट्स नॉट अ लेज़ी थिंग. इट इज़ अ बायोलॉजिकल फैक्टर. आपके कहीं ना कहीं वो न्यूरो जो हैं, वो न्यूरो आर एक्टिंग इन अ मैनर विच इज़ मेकिंग यू डू दैट. So don't feel that it is something just you are just reading up in the air. No, it is not. लाइफ हमारी स्ट्रेसफुल है. हम उस 100 साल की चीज़ को 10 साल में पाने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर जस्ट इन अ वेरी रैपिड रेस एंड विथ लेसर सपोर्ट देन अर्लियर. एंड दैट इज़ वेयर हमारा ये, अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हमारा स्टैटिस्टिक्स ओवर द लास्ट 15-20 ईयर्स मेंटल हेल्थ में बहुत बढ़ता चला गया है. And there is a lot of myth and stigma attached to it. अगर जब तक हम इस myths को नहीं तोड़ेंगे, तब तक हम आगे रिकवरी प्लान पे कैसे जाएंगे? सो लाइफ में क्या होता है, देर आर 4 मेजर डायमेंशंस जो हमें अपने लाइफ के लिए चाहिए होता है फॉर अ रिकवरी इन अ लाइफ, व्हेन वी वांट टू बाउंस बैक इन आवर लाइव्स. हेल्थ, होम, पर्पस एंड कम्युनिटी, राइट? एंटिल सबसे पहले हेल्दी होना हमें ज़रूरी है, फिजिकल वेलबींग. अगर हम में एनर्जी नहीं है, अगर हम हेल्दी नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे. सेकेंडली होम और द स्टेबल फैक्टर दैट वी कॉल इट, वेर वी कैन लिव इन अ पीसफुल एंड अ सेफ, एंड सेफ्टी की नीड जो हमारी होती है उसे पूरा होना होता है. थर्ड, आप लाइफ में तभी आगे बढ़ोगे या जियोगे या आपका कुछ भी करने का दिल करेगा व्हेन यू फाइंड अ पर्पस इन लाइफ. प्लीज़ गाइज, अपनी ज़िंदगी में एक मकसद की तलाश बहुत ज़रूरी होती है. ये नहीं कि आज मैंने पढ़ाई कर ली, आज मैं नौकरी में आ गई, आज मैंने शादी कर ली, आज मेरे बच्चे हो गए. नहीं, उसके अलावा भी यू नीड टू फाइंड अ पर्पस इन लाइफ विच कैन कीप यू गोइंग. Until unless you have that purpose, until unless you have something to hold you together, आप आगे नहीं बढ़ सकते. एक वैक्यूम आने लगेगा, एक सूनापन आने लगेगा, एक खालीपन आने लगेगा लाइफ में, और वहाँ से फिर वो वॉइड बढ़ता जाता है. सो लुक फॉर अ पर्पस. एंड फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग ओवर द ईयर्स डिक्लाइन कर रहा है, दैट इज़ द सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी थिंग.
सो एक सिंपल स्टेप में हम लोग कहते थे मैन इज़ अ सोशल एनिमल, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग नीड, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी अर्ज। इस कम्युनिटी अर्ज के लिए हम क्या कर रहे हैं आज के डेट पे? हमारी लाइफ बहुत स्पीड अप हो गई है, बहुत भागम भाग है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ है। अब तो न्यूक्लियर से भी मैं मोनो या एटॉमिक फैमिलीज़ की बात करने लगी, लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट लिविंग अलोन। सो वेयर वुड दे टॉक इट आउट, वेयर वुड दे टेक आउट देयर स्ट्रेस इन लाइफ? उनके सपोर्ट सिस्टम का क्या हुआ? जो ऑफिस का प्रेशर है, हमने मील्स को एंड बना दिया है। हम सुबह से उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, देर तक काम करते हैं, वापस घर आते हैं और सो जाते हैं। वेयर इज़ समथिंग एल्स विच इज़ लाइफ? आई एम नॉट सेइंग डोंट वर्क, आई हैव बीन अ वर्कaholic इन माई लाइफ। मैं देयर वॉज अ टाइम जब 15-18 घंटे काम करती थी, बट देन देयर कम्स अ वैक्यूम इन लाइफ, पर्पसलेसनेस आने लगता है, ये फील होता है कि ये क्यों कर रहे हो? I used to live in a very nice bright house and somebody told me यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है तुम्हारे घर का। एंड फ्यू ईयर्स अगो आई वाज लाइक, इज इट? मैं तो कभी खड़ी होकर देखी ही नहीं। सुबह उठती हूँ, ऑफिस चली जाती हूँ, देर से आती हूँ, तब तक रात हो चुका होता है, बाहर का व्यू तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। एंड अ लॉट ऑफ अस वुड अग्री टू इट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू compartmentalize our life, to segment it. There has to be, I'm not saying work is not important, it's very important, that's where the purpose आपकी ज़िंदगी का मिल रहा है, बट उसको एक कंपार्टमेंट है, हर एक कंपार्टमेंट लाइफ का इम्पॉर्टेंट होता है। सो fill it with different flavors, fill it with different colors, that's very important to do. So now when we talk about these 4 important pillars that I wanted to tell you about in our life and our support system: health, होम, पर्पस एंड कम्युनिटी। कम्युनिटी को हमेशा अपने सपोर्ट सिस्टम, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने अक्वेंटेंसेस, अपने नेबर्स, नेबरहुड की तो आज कोई बात ही नहीं करता। व्हाट इज़ दिस इन आर social isolation or the post corona era when we cannot go out, right? So if we cannot go out, how many of us are in great terms with our neighbors? Trust me, I personally first time in my 15-20 years of living in metros, first time I made friends with my neighbors. मुझे पता ही नहीं था मेरे सोसाइटी में, मेरे फ्लैट मतलब ब्लॉक्स में कौन रहता है। एंड अ लॉट ऑफ यू वुड अग्री टू इट, हमें पता नहीं होता। सो हम वी लिव इन अ वेरी आइसोलेटेड लाइफ। सोशल आइसोलेशन की आज बात कर रहे हैं पोस्ट कोरोना, बट द रियलिटी इज हम लोग बहुत ज़्यादा अकेले हो गए। एंड नाउ इस अकेलेपन से जो सारा कुछ स्ट्रेस हम अंदर रखते हैं वो कहाँ मैनिफेस्ट होता है? मेंटल हेल्थ पे। वाई इज़ देयर अ राइजिंग ट्रेंड अबाउट सुसाइड्स? अ लॉट ऑफ टाइम एंड सपोर्ट आपकी फैमिली या फ्रेंड्स तब करेगी जब आप उन्हें करने दोगे। हाफ द टाइम उन्हें पता ही नहीं होता व्हाट यू आर गोइंग थ्रू बिकॉज वी डोंट शेयर इट। सो एंड व्हाट आर दीज स्ट्रेस फैक्टर्स? कुछ भी स्ट्रेस हो सकता है, लाइफ के किसी भी फेज में स्ट्रेस हो सकता है। एंड 41%, एज इफ वी लुक इनटू द स्टैटिस्टिक्स, 41% ऑफ मेंटल हेल्थ और द सुसाइड्स रिलेटेड टू डिप्रेशन हैपन्स बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 30. सो ये 14 साल से 30 साल के जो यूथ होते हैं, दैट इज द टाइम वेयर अ हाई स्ट्रेस लेवल इज देयर। वाई? They are the most brightest lot. Why do they get so disillusioned? So वो stress अंदर ही अंदर उनका कहीं नहीं निकल रहा होता। There could be n number of things that can make us depressed. There could be आपने कोई एग्ज़ाम दिया, वो एग्ज़ाम नहीं क्रैक हो पाया, आप कोई जॉब के लिए फ़ाइट कर रहे हो, वो नहीं हो पाया, आपके एग्ज़ाम्स में नंबर अच्छे नहीं आए, एंट्रेंस में नंबर अच्छे नहीं आया, आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, आपका स्पाउस आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपकी शादी कहीं और हो गई है, आपका जॉब आपको खुशियाँ नहीं दे रहा है, आपकी फैमिली से नहीं बन रही है, आपकी तबीयत में कुछ दिक्कत आ रही, फिजिकल वेलबींग जिस कारण आप मेंटली स्ट्रेस्ड हो, a lot of things, different phases of your life. There could be loss of a loved one, there could be separation from loved one, कुछ भी रीज़न हो सकता है। लेट्स नॉट अंडरमाइन द रीज़न। आधा से अधिक समय हम ये कहते हैं ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो वी आर लूजिंग दैट एम्पैथी एज वेल। हो सकता है आपके लिए बड़ी बात नहीं हो, बट आपके लव्ड वन के लिए वो बहुत बड़ी बात है। सो सपोर्ट देम instead of criticizing or just undermining the cause of it.
आजकल स्मॉल स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्कूल के बच्चे जो होते हैं, there are times when they are bullied in school, or exam pressure, studies pressure, parental pressure of being perfect, right? So I have been one of the victims of parental pressure, of stress. All throughout my life I was like under the pressure, ये perform नहीं करना, कितना भी अच्छा करके आओ, this is not good, you have to do more. You are somehow accumulating a lot of mental pressure. क्या होता है, कब तक आप प्रेशर ले पाओगे? Half the time you would say, this is not something that you want to do. Half the time you are forced to do things. So that's one segment that I am talking about. Now 30 onwards फिर हमारा कैसा स्ट्रेस होता है? वर्क स्ट्रेस होता है, प्रोफेशनल स्ट्रेस होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, पेरेंटल हेल्थ स्ट्रेस होता है. अभी का यंगर जनरेशन जो हम लोग हैं, a lot of our parents live in different cities, they are getting old, we need to look after them. That's again something that we need to learn to manage. और हमारे पिछले generations में इस तरह के issues थे ही नहीं. ये generation जो है which is fighting, and for that matter all the generation have their own challenges. So now we have to learn, find your tribe. Say for example, if you are battling some kind of stress, the community urge, find your tribe. That's where you would feel connected to. Say for example, if you are looking for a job, you are looking for some stability, or you have maybe did not get into a job and looking for something else, find the kind of people who dealt in that manner. If you are an entrepreneur or you start up as field, meet people who were in the similar area. If you are going through a breakup or a separation, meet people who are in the similar area. If you are having personal issues, meet people, because that's your tribe. They can relate to you and they can talk to you. Also very important. Now let's get to a little more after the family or the community support. In case, say for example, in case there are times when we as humans, it's very humanly nature, we at times cannot open up to our family, friends for XYZ reason. बहुत सारे कारण हो सकते हैं. वो हमें जजमेंटल कर हो सकते हैं, वो हमें बाद में उस बात का ताना डाल सकते हैं कि तुमने तब तो ऐसा किया था, राइट? सो इस प्रेशर से हम बहुत बार ओपन अप नहीं करते हैं, विच इज़ वेरी वेल टेकन, विच इज़ अ वैलिड पॉइंट. आप अपनी वीकनेसेस नहीं दिखाना चाहते. दैट्स अ टाइम, दैट्स अ पॉइंट इन योर लाइफ. यू नीड टू बी ओपन to accept you need support. You need to be open to seek external support, seek professional support. There are methodologies available. अकेले खुद से there is no point reinventing the wheel. आप बार बार व्हील्स को रीइन्वेंट नहीं करने की ज़रूरत है. जब किसी ने उस पथ पे काफ़ी आगे तक जाकर एक मेथडोलॉजी निकाल रखी है, क्यों ना उनसे सीखें, राइट? स्कूल कॉलेजेस में हम पढ़ाई करते हैं क्योंकि वो एक सिस्टम बना हुआ है. सिमिलरली देर आर मेनी वेज. हम पहले जनरेशन या पहले लोग या पहले इंसान इस धरती पे नहीं है जिसे कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी मेंटल हेल्थ की इश्यूज़ हैं. सो अब तक लोगों ने कुछ तो डिवाइस किया होगा ना तरीका. सो नाउ लेट अस ट्राई एंड यूज़ दोज टेक्निक्स एंड टर्मिनोलॉजीज एंड मेथड्स, राइट? एंड these could be both clinical and non-clinical ways. There are therapies, there are meditation, there are workshops where you can go and learn or master those tricks. And then there are mental issues which needs specific medical treatment, and none of them are bad. All these are both at clinical and non-clinical kind of support. They are meant to help us out. बुखार होता है तो हम एक सिंपल सा मेनी टाइम्स हम डॉक्टर से भी कंसल्ट नहीं करते. बुखार है तो एक क्रोसिन खा लेते हैं, राइट? क्योंकि हमें ठीक होना होता है. सो गाइज, व्हाट हैपन्स व्हेन वी आर स्ट्रगलिंग मेंटली? व्हाई डोंट वी सीक सपोर्ट? व्हाई डोंट वी आस्क फॉर हेल्प? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सिमिलरली जब हम इस क्लिनिकल की बात करते हैं, सो क्लिनिकल में so let's first try and understand the top 10 mental health issues. Anxiety, depression, panic attack, obsessive compulsive disorder OCD, PTSD, post traumatic stress disorder, phobias, delusions, attention seeking syndrome or dissociated disorder, sleep disorder,
schizophrenia, hallucination, and a lot of others like autism, general anxiety disorder. There are, these are where you need to get the medical help. So now, क्या आपने कभी एंजाइटी नहीं फील हुआ, घबराहट, या डिप्रेशन में नहीं आए हैं कि एक नॉर्मल लाइफस्टाइल आपकी नहीं चल रही हो, या पैनिक अटैक? A lot of people have this OCD. I at times have OCD. OCD is what? Obsessive compulsive disorder. कि अगर आप एक सब्जी भी काट रहे हो तो सबके पीसेस इक्वल होने चाहिए, चादर डाला है तो एकदम नीटली होना चाहिए, पेपर्स रखे हैं तो सब समेट के होने चाहिए. It's nothing wrong in it. So once we know deal, and these could be, guys, these could be those traits which can manifest. वो उसको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम हमारे लाइफ के वेलबींग के लिए काफ़ी सही हो जा सकती है. बट देर आर सम मेडिकल न्यूरो ट्रांसमीटर्स के भी इश्यूज होते हैं. न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर्स वो केमिकल्स होते हैं जो हमारे न्यूरॉन्स या मेंटल और नर्वस सिस्टम को डील करते हैं. सो फ्यू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द फोर वेरी बेसिक और द मेन न्यूरो ट्रांसमीटर आर सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, गामा, and serotonin, dopamine. I think there is a power cut, but that's the way of life. I think we have backup, so it would come back soon. And like we say, after every dark hour, the light would come. So I'm quite hopeful that it would come, but I'm sure that you guys can still see me. So after all these kind of, we were talking about the neurotransmitters. So these neurotransmitters, there are times जब हमारे नर्वस सिस्टम में या हमारे केमिकल्स जो होते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स में इशू आ जाती है, एंड दैट इज़ वेयर वी नीड द क्लिनिकल ट्रीटमेंट, दैट इज़ वेयर वी नीड मेडिकल हेल्प और द मेडिसिन्स. एंड a lot of times it does help relieve the situation and you would feel good. ये हमारे भले के लिए बनी हुई है. आप कोशिश करके देखना, अकेले बिना बुखार, कितने लोग ये भी कहते हैं कि बिना क्रोसिन लिए मेरा बुखार ठीक हो गया, बट आपने कितना सफ़र किया, राइट? दीज ऑल्सो दीज मेडिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हमारे होते हैं, ये बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ पीरियड्स के लिए होते हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि काफ़ी साल तक चल जाते हैं ऐसा, और कुछ बार ऐसा होता है कि लाइफ लॉन्ग भी होते हैं, एंड यू हैव टू मैनेज टू लर्न एंड लिव विद दोज कंडीशंस. So depending upon what your situation is, depending upon how you want to handle it, the way you have to go forward. See, there is light at the end of the tunnel. The electricity is back. So those were the clinical things that I wanted to talk. Now let's come to the non-clinical aspect of mental health and the types or the diagnosis that is available. Non-clinical में क्या कर सकते हैं हम लोग? There are ways, how you intune your mind or organize yourself or make believe. एक Japanese proverb है where they talk about read the air. And what is this read the air? रीड द एयर है, अपने माहौल को समझो, उस हिसाब से दिमाग को ट्रेन करो कि जो आप सिर्फ दिख रहा है वही सच नहीं हो सकता है. देयर कैन बी मोर टू इट, राइट? सो दैट इज वेयर वी कैन चैनलाइज आवर skill set, our mind, to look into ways that can aid us perform better and organize our life better. That is where the role of a professional life coach or NLP practitioners come in. So now what is NLP? NLP is, if we just first let's understand what is the full form of NLP. Neuro-linguistic programming. Neuro-linguistic programming क्या हुआ? So neuro-linguistic programming, I think in the late 1970s, 1976 or something, two guys in the US, they started observing the successful people. Now when they started observing the successful people कि वो क्या कैसे करते हैं और कैसे करते हैं, so that they are more effective in their nature, and based on that modeling, this entire NLP concept came into place. So it's not just, it has come out from nowhere. There is valid modeling, statistics and observation that is built behind it. So having said that, uske so after modeling this, so simple चीज़ें हैं. NLP में हमारे पास जब किसी भी चीज़ को न्यूरो इज माइंड, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज and programming. So how you can program your mind to do a much better life, much organized life.
I, being a certified life coach, what I do when anyone comes to me for any kind of support, they can come to get their generalistic life in order, they can come to help me sort one problem of theirs, they can help me achieve their roles, phase wise manner. So what we do, after all these structured methods and observation, or the stages of working together, of organizing your mind and your life together, we come up with different ways, and a counselor क्या करता है, एक लाइफ कोच क्या करता है, coaching is what, now let's say that करना आपको ही होता है, but still you need somebody to guide it. खेलना तेंदुलकर को ही है, cricket, right? A Tendulkar has to go and bat. It's not that somebody else would, but even a Tendulkar would need somebody to train him. He needs a mentor, he needs a coach, so that somebody can sit outside the arena, वो उसको देख के समझाए और बताए, प्लानिंग क्या करनी है. अगर आप दोनों चीज़ खुद से करने लगोगे in a crisis time, you may fail or you may never be able to improve yourself. हमें अपनी खुद की मिस्टेक्स या खुद की गलतियाँ नहीं दिखती हैं. ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है. अगर हमें अपनी गलतियाँ दिख जाएंगी तो हम उसको ज़रूर सुधार लेंगे, बट हमें अपनी गलतियाँ नहीं दिखती हैं. सो एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से, एंड इट्स नॉट कि आपकी गलतियाँ कोई दिखाना चाह रहा है, आपको आपका बेटर वर्जन बनाने की कोशिश की जा रही है, राइट? आपको ज़्यादा इफ़िशिएंट, अगर मैं बिजनेस कंसल्टेंट टर्म्स में बोलूँ, वहाँ पे हम लोग इफ़िशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने की बात करते हैं. सो सिमिलरली एज अ लाइफ कोच व्हाट वी डू इज़, आपके लाइफ की इफ़िशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने की काम की जाती है. इसका भी अपना स्टेप वाइज तरीका होता है. हाउ यू थिंक, हाउ यू प्रोग्राम योर सेल्फ, हाउ यू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ लाइफ इन शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म्स टू अचीव इट. इस पूरी प्लानिंग मेथोडोलॉजी का एक सिस्टम होता है जो गिवन एट विच प्लेस एंड जर्नी इन योर लाइफ यू आर, एंड इट कैन हेल्प यू प्रोग्रेस. सिंपल सा चीज़ है, एक NLP का टेक्निक होता है विच इज़ कॉल्ड स्विस पैटर्न. स्विस पैटर्न में हम क्या करते हैं, हम बहुत सिंपल सा एक चीज़ होता है, कोई भी चीज़ से फॉर एग्जांपल हमें कोई भी, we know that we want to leave a habit, say for example if we are overeating, we know that, or we are watching a lot of screen time and we want to break that pattern. How to do that? We all know we don't have to break it. So I as a person, I am giving examples so that you guys can relate to it. मुझे एक अजीब सी आदत है कि पोस्ट डिनर में कुछ मंच करना चाहती हूँ. So that's something and I don't like it. I want to break it. So होता क्या है एट अ मेंटल लेवल, व्हाट हैपेंस, एंड विच वी कॉल इट एज अ स्विच पैटर्न. होता क्या है एट अ मेंटल लेवल, हमें ये लगता है कि वो मंच करने से या वो खाने से या स्क्रीन टाइम पे वी गेट अ सेंस ऑफ कंफर्ट, राइट? सो माइंड में किसी भी इमोशन का, डीप इन योर माइंड देयर इज एन इमेज दैट इज क्रिएटेड, एंड दैट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में हम यही करते, उस इमेज को चेंज करना होता है. से फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर लग रहा है कि मुझे ये पीनट्स खाने से मुझे अच्छा फील होगा, सो आई हैव एन इमेज इन माई माइंड दैट आई वुड बी हैप्पी अबाउट इट. आई नीड टू स्टार्ट चेंजिंग दैट. हाउ वुड आई डू दैट? द मोमेंट आई थिंक ऑफ एन समथिंग बेटर इमेज, इफ आई थिंकिंग, जब मैं ये पीनट्स को देखूं और उस समय मैं पोस्ट डिनर पीनट्स रोज खाने की बात सोचूं, और उस समय मैं इस वर्जन को इमेजिन करूं कि मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, मुझे एक स्लिमर वर्जन में होना है. So mental image अगर वो हो जाएगा which would give me more happiness, then this thing would not give me happiness. It is more so about pacifying our mental needs. So we have to play tricks to our mind because our mind plays tricks to us. So we need to master that art so that Three Idiots movie most of us have seen. ऑल इज़ वेल क्यों कहते हैं? दैट इज़ नॉट मूवी में मजाक नहीं बनाया है या हमें उल्लू नहीं बना रहा है. दैट इज़ इन NLP वी कॉल इट एन एंकर मेथड. व्हेन यू से योरसेल्फ ऑल इज़ वेल, यू एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग वेल. सब ठीक है. मैं भी ये करती हूँ अपने साथ. ऑल इज़ वेल, देयर इज़ नो नीड टू पैनिक, देयर इज़ नो नीड टू गेट स्ट्रेस्ड आउट. Just calm down. There are such phases that you have to just go through. वो फेज़ निकल जाएगा, आप फिर काम डाउन हो जाओ. सो दीज आर स्मॉल थिंग्स विच हेल्प यू एज अ पर्सन टू वर्क ऑन टू योर मेंटल लेवल. अपने मेंटल प्रोग्रामिंग कैसे करना है उस पर काम कर रहे होते हैं. अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, say now let's talk about this post corona era.
पोस्ट कोरोना एरा में हमारा क्या हो गया है दैट नाउ अ डेज वी आर अ लॉट मोर आइसोलेटेड, राइट? इफ यू लुक इनटू द स्टैटिस्टिक्स, last 6 months में 2020 has been a tough year for most of us. Not just social isolation, a lot of job cuts, instability at job, घर पे प्रेशर, सारे लोग घर पे हैं, स्पेस क्रंच, हेल्थ क्रंच, इतनी सारी इश्यूज हो रही हैं। सो अभी क्या हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा you would see a lot of high stake people getting into emotional breakdown, mental breakdown, suicides. So क्यों हो रहा है, इतना स्ट्रेस बढ़ क्यों गया? ऑल ऑफ अ सडन देर हैज़ बीन अ ह्यूज राइज। अभी हम कोविड-19 के बाद हम लोग वैक्सीन्स की बात कर रहे हैं। ओके, फेयर इनफ, वैक्सीन से हमें फिज़िकली आराम मिल जाएगा, हो सकता है जब भी आए, उसमें भी वक्त है, बट वो जब भी आए। बट इसका ये अंडर करंट जो चल रहा है, ये जो साइड रिपरकशंस हो रहे हैं हमारे मेंटल हेल्थ पे, घर में हम बंद हैं, कहीं बाहर आ जा नहीं रहे, फ्रेंड्स फैमिली से मिल नहीं रहे, हमारी वो बेसिक सोशल नीड जो है, वो सोशल नीड हमारी फुलफ़िल नहीं हो रही है। सो स्ट्रेस लेवल और मेंटल इश्यूज बढ़ रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे सिचुएशन में वी कैन सीक सपोर्ट। ऐसे सिचुएशन में वी कैन डू मेडिटेशन। ऐसे सिचुएशन में वी कैन डू लाफ्टर योगा। इट हेल्प्स जनरेट योर हैप्पी हार्मोन्स। वो हैप्पी हार्मोन्स अगेन न्यूरो के साथ हमें खेलना है, हमें उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, राइट? देयर कुड बी जस्ट टू वेज, आइदर यू वुड बी रूल्ड बाई योर केमिकल्स और यू कैन मास्टर द आर्ट ऑफ रूलिंग इट। तीसरा कोई तरीका नहीं है। सो जब तीसरा कोई तरीका नहीं है, एंड वी ह्यूमन रेस वी आर नोन टू इवॉल्व एंड अडेप्ट, सो वी नीड टू ग्रो स्ट्रॉन्गर। प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में कभी कम नहीं होंगे, आपको अपने लड़ने की क्षमता बढ़ानी होती है, आपको अपनी पावर एनर्जी बढ़ानी होगी। एज वी ग्रो हमारे लाइफ में चैलेंजेस कम नहीं होते हैं, हर दिन एक नया चैलेंज लेकर आता है। सो हमें अपनी एनर्जी लेवल्स पे वर्क करना है। एनर्जी लेवल, फिजिकल एनर्जी, फिजिकल वेलबींग एंड स्टेइंग फिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इज़ इम्पॉर्टेंट द मेंटल हेल्थ। इस मेंटल हेल्थ के बारे में जो हमारा टैबू है, जो हम नहीं बात कर रहे होते हैं, सो उस मेंटल हेल्थ पे हमें फोकस करना है। जो मेंटल हेल्थ इज़ नॉट कि वो तो पागल है, नहीं, एंजाइटी इज़ द मेंटल हेल्थ। अ लॉट ऑफ टाइम्स आई एम वेरी हैप्पी टू सी द ट्रेंड कि सेलिब्रिटीज़ नाउ अ डेज दे कम अप एंड दे टॉक अबाउट देयर मेंटल हेल्थ, देयर फेजेस जब उन्होंने डिप्रेशन से लड़ाई की और वो बाहर आए। So these are the ambassadors or kind of people that we need to break those taboos. उस taboos को तोड़ के, जब अगर हम सोचेंगे, जब दीपिका पादुकोण आके कहती है कि she has fought a battle with depression, we all feel कि अगर जब वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, राइट? हमें एक रोल मॉडल से इस तरह की बातें सुन के काफ़ी अच्छा लगता है। एंड दैट इज़ वेयर आई एज अ पर्सन एंड आई एज अ लाइफ कोच, मैं भी ये कहती हूँ, मेरी लाइफ में भी बहुत बार ऐसे फेजेस आए हैं जब मैं बहुत डिप्रेस्ड रही हूँ, और उस डिप्रेशन में आई हैव बिन लकी, आई हैव हैड अ amazing circle of friends who have always supported me, but there could be people who cannot get it, right? So family में से अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, they are in a state of denial। वैसे में आप क्या करोगे? क्या अपने आप को टूटने दोगे, बिखरने दोगे? नहीं, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो इट इज़ जस्ट यू हु वुड डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ, टू सेव योर सेल्फ। देर इज़ nobody else that's gonna come to save you, right? One of my favorite saying is don't look for a knight, look for a sword। आप किसी योद्धा की खोज मत कीजिए, आप एक तलवार लीजिए, और वो तलवार आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने चैलेंजेस को काट सको। सो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, अपनी एनर्जी बढ़ाते जाना ही है, और उसके लिए कहीं से भी सपोर्ट मिले, इस तरह के जो हीलिंग वर्कशॉप्स होते हैं, सो हाउ टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। वो बुरी इमेजेस, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ का पार्ट है PTSD, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जिस समय आप एक स्ट्रेस से गुजर रहे होते हो, उस समय आप अपनी पूरी एनर्जी लगा के स्ट्रॉन्ग बन के स्ट्रेस के बाहर आ जाते हो, बट वो ट्रॉमा, वो माइंड में प्रेशर अंदर ही बन जाता है। पहले के ज़माने में बहुत सारे एरियाज़ में अपने कंट्री में देयर यूज्ड टू बी रुदालीज। वो आती थी जब डेथ पे कोई इंसान नहीं रो रहा होता था, तो वो रो रो के लोगों को रुलाती थी। बहुत ज़रूरी होता है, वो ग्रीफ निकलना भी ज़रूरी होता है। आप अंदर ही रख लोगे तो बहुत मुश्किल है।
जैसे एक सिंपल सा जब सर पे चोट लगता है, लोग कहते हैं खून बह गया तो ज़्यादा अच्छा है, अंदर रह गया तो क्लॉट कर जाएगा और वो बाद में दिक्कत देता है। सो सिमिलरली आपके जो पोस्ट ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस होते हैं, मे बी वेन यू लूज़ अ लव्ड वन, मे बी वेन यू गो थ्रू अ डिवोर्स, मे बी वेन यू गो थ्रू अ चाइल्ड लॉस, मे बी वेन यू गो थ्रू अ जॉब लॉस, दीज आर ऑल रियलिटीज़ ऑफ आर लाइफ। हम जितना भी छुपाएं ज़िंदगी से सच, हर की ज़िंदगी, किसी की ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती है, हर की ज़िंदगी में चैलेंजेस होते हैं, हर की ज़िंदगी में इश्यूज़ होते हैं। तो उस ट्रॉमा से निकलने के लिए आपको उन तरह की चीज़ों का यूज़ करना होगा जो आपको हेल्प करे। पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पे हो सकता है आपको मेडिसिन हेल्प करे, हो सकता है बिहेवियरल थेरेपी हेल्प करे, हो सकता है आपको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हेल्प करे, हो सकता है जस्ट अ काउंसलिंग कैन हेल्प यू आउट, हो सकता है आप सिर्फ अपने मन की बातें किसी को अगर बेझिझक बता सको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर, इट्स अगेन अ ह्यूमन नीड। सो हमें इन सारी बातों को वी कैन नॉट जस्ट से कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। और अगर आप इसको नज़रअंदाज करते चले जाओगे बियॉन्ड अ पॉइंट, फिर क्या होगा, आपकी इफ़िशेंसी गिरने लगेगी। मैंने अपना एग्जाम्पल दिया, मैं आई हैड बिकम अ वर्कोहॉलिक और मेरी इफ़िशेंसी डाउन होने लगी थी। तब मैंने इस तरह के टेक्निक्स का हेल्प लिया एंड आई कुड सी कि इससे फ़ायदा हुआ। आई बाउंस्ड बैक इन लाइफ, and that's where I decided that since it has helped me, I would learn these techniques, I would get myself equipped with these techniques, I will get myself certified with my techniques, and then मैं बाकियों का हेल्प करूँगी, क्योंकि मुझे पर्सनली इसमें बेनिफिट दिखा। एंड इट्स नॉट कि इट्स समथिंग by qualification, by professional, I'm very well qualified. I did a master's in biotechnology and I did an MBA from the one of the best institute that you could think of. But then उससे क्या होता है, लाइफ के चैलेंजेस घट जाते हैं क्या? नहीं। हमें अपने बीइंग एजुकेटेड डज नॉट मीन दैट वी से दैट ये सारी चीज़ें, ये टेक्निक्स फालतू की हैं। फालतू की नहीं होती हैं, इट्स फालतू की नहीं है। लाफ्टर थेरेपी, व्हाट इट इज़, व्हेन यू लाफ आउट, आपका स्ट्रेस निकल जाता है, आप खुश होते हो, आप हंसते हो, आप में अच्छे हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं। योगा एंड मेडिटेशन, व्हेन यू मेडिटेट, आपके माइंड से, आपकी ब्रेथ से इतनी एनर्जी आती है दैट प्राण ऊर्जा कहते हैं। क्यों प्राण ऊर्जा कहते हैं? क्योंकि वो प्राण दे रहा है आपकी हर एक सेल में। क्यों हम स्ट्रक्चर करने की लाइफ की बातें करते हैं? क्यों हम चीज़ों को एक सिंपल धर्रे पे छोड़ नहीं देते? बिकॉज अगर वैसे ही चलने देंगे, जैसे होता है ना हर मशीन में, इंजन में आपको थोड़ा ना थोड़ा फ्यूल डालना पड़ता है। दैट फ्यूल कुड बी एनीथिंग, दैट फ्यूल कैन बी स्पिरिचुअल फ्यूल, दैट फ्यूल कुड बी reading a book, that fuel could be having a cup of coffee with your best friend, that fuel could be anything. सबकी लाइफ में स्ट्रेस है, हम 100 साल का काम 10 साल में करना चाह रहे हैं, बहुत भागम भाग है, सब कुछ चाहिए हमें और बहुत जल्दी, बट कुछ ना कुछ तो छूट जाएगा ना, उस कुछ में खुद को नहीं छूटने देना है। And that is the entire intent about talking or having these sessions where we can come together, share our story, share the ways that is happening around, share positivity, most important. सबसे important कोई चीज़ है तो वो है कोरोना पॉजिटिव नहीं, वी शुड नॉट गेट कोरोना पॉजिटिव, बट अगेन अगर आप पॉजिटिव भी, कोरोना पॉजिटिव भी होते हैं, वहाँ पर अगर आप में ये लड़ने की क्षमता होती है, ये एक पॉजिटिव फील होता है, द विल टू लिव होता है, तब आपकी इम्यून सिस्टम भी बेटर रिस्पॉन्ड करती है, राइट? सो having a positive outlook in life is so important to come out of anything. There are people जो कैंसर से भी लड़के आगे आते हैं, and there are people जो एक छोटी सी बीमारी में सकम कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वो जीने की चाहत, वो पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी होती है। दैट इज़ वेयर आई टॉक्ड अबाउट द पर्पस और द मीनिंग और द एम इन लाइफ। वो कुछ भी हो सकता है, छोटी सी छोटी चीज़ हो सकती है जिससे आपको खुशी मिले, और देयर कुड बी टाइम्स जब आपको बहुत बड़ी सी बड़ी चीज़ से भी कोई खुशी नहीं मिल सकती है, और अगर आप खुश नहीं हो तो आपकी एफिशिएंसी गिरती चली जाएगी। सो आपको पॉजिटिव होना है। पॉजिटिव होने के लिए सिर्फ और सिर्फ काम से वर्क गिव्स यू अकम्पलिशमेंट, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कीप आवरसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड एंड इंगेज्ड एंड वर्किंग, बट एट द सेम टाइम हमें वो कंपार्टमेंटलाइज करके, लाइफ को सेगमेंट करके इस बात को भी देखना होगा कि हम अपने आप को, अपने सोल को फिल करने के लिए क्या कर रहे हैं। Guys, we cannot pour from an empty cup. It's very simple. You cannot pour from an empty cup.
यू आर लाइक अ कप, आप जब तक अपने कप को भरोगे नहीं, आप उसमें से दूसरे को क्या दोगे? सो खुद को भरने के लिए, खुद के सोल को भरने के लिए, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एफर्ट डालने रहता है. Also coming back to this concept of NLP, NLP is when we talk about हम अपने दिमाग को कैसे प्रोग्राम कर रहे होते हैं so that हम किसी भी चीज़ को एक बेहतर तरीके से देखें. So NLP में हम किसी भी, and it's not just कि आपको सिर्फ एक relationships में या खुद में फ़ायदा होगा. NLP से आप you could benefit in different sense. You could benefit in your work, in your business, because आप अपने consumer, आप अपने customer के behavioral, you know when I said read the air concept, आप उसके language को समझ रहे हो कि okay, what is the point, okay, when he thinks like this or he behaves like this, he would generate like this. You know, marketing में बहुत simple techniques जो हम लोग use करते हैं, वहाँ पे भी NLP use कर रहे होते हैं कि कौन सा कलर, कौन सा सेगमेंट, कौन सा स्मेल, कौन सा यू नो. एडवर्टाइजमेंट्स में आप आजकल अक्सर देखते होंगे कि किड्स आके प्रमोट करते हैं कि बच्चों ने पूड़ियाँ बनाई हैं. वाई? Because now we know the buying powers or the influencing power in a family are kids. So we need to hit on that emotional aspect. So NLP or neuro linguistic programming से if you learn the methodology, you can also communicate well with your clients, with your customer, increase your business. That can, because आपको एक language, आपको वो mental language, आप कैसे किसी के mind के साथ impact बना सकते हो, आप वो learn कर जाते हो. So that is also a very important thing which you can get benefited by NLP. So it's first and the most important thing is you can work on to with your mental health, right? आप खुद को अपनी लाइफ को उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेते हो, but at the same time learning these can help you improve your work, your business, your client base, your customer base or your relationship with your managers. So at work front पे भी ये आपको काफ़ी help कर सकता है. Third, I would say it helps you a lot more in interpersonal relationship. So when we understand others, अगर मुझे पता है कि मेरे स्पाउस को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे बच्चे को किस चीज़ से प्रॉब्लम है या किस चीज़ से वो खुश हो सकता है, किस चीज़ से वो मोटिवेटेड हो सकता है, तो उस तरह से अगर मुझे पता है कि मैं प्रेशर डाल रही हूँ अपने बच्चे पे और उससे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, मैं उसके माइंड के प्रेशर लिमिट्स को समझ पाऊँगी. या मुझे पता है कि उसको किस चीज़ में, किस डायरेक्शन में मोटिवेट करना है, व्हाट इज़ हिज और हर लाइकिंग, आई कैन डू इट अकॉर्डिंगली. अगर मुझे ये पता है कि मेरे इन लॉज को किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है और इससे मेरी पर्सनल लाइफ ख़राब हो सकती है, सो इफ़ आई नो दिस NLP और द बिहेवियरल थेरेपी मॉडल, आई कैन वर्क एंड डू इट बेटर. If I know how to work around with my friends, with my spouse, I can work around with things in a much better manner. मैं अपने सर्कल में, अपने फैमिली में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में, नेबर्स में, हर जगह एक बहुत ही हिट एंड फिट, यू नो, आई वुड बी अ हिट पर्सन बिकॉज आई वुड फिट विथ ईच एंड एवरी ग्रुप. So it also helps you build a lot of interpersonal relationships, and interpersonal relationship जहाँ अच्छे होंगे, आपकी sense of feeling, sense of belongingness, sense of happiness, life की अपने आप improve होती है. So that's the third very important aspect of NLP. And fourth, and the holistic approach है, it overall improves your personality. You know how to, you become a much more presentable person, more peaceful person, more organized person, more content person, right? आपको खुद में एक बहुत ही संतोष की फीलिंग आएगी कि मेरी लाइफ अच्छी चल रही है. आपको अपने रोज़ के दिनचर्या में अच्छा फीलिंग आएगा कि मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ. आपको खुद में एंजाइटी लेवल्स में कमी लगेगी. आप खुद इफ़िशिएंट हो चुके होगे. सो आप खुद को इम्प्रूव पाओगे, आपकी पर्सनालिटी प्लीजिंग हो जाएगी. एंड ट्रस्ट मी गाइस, हमें किसी और की वैलिडेशन नहीं चाहिए होती है, हमें सेल्फ की वैलिडेशन चाहिए होती है. हम सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, बट अंदर हमारी खुद की आत्मा में हमें ये पता होता है हम सही हैं या गलत हैं. उस पल के लिए, उस आत्मा की शांति के लिए, उस होलिस्टिक हैप्पीनेस के लिए, that is the most important thing. That is what gives us peace, that is what gives us happiness, that is what keeps us going, that is what's the soul. So now ये चार इतने important factor है, right? So first it works on your if you are having a stress, depression, anxiety, PCO, OCD,
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और एनीथिंग अदर लाइक दैट. सो आपका कोई भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, राइट, सो either it could be cured by clinical, which is the medicine aspect of it, or non-clinical, which is the counseling or these therapies aspect of it. और देर कुड बी अ कॉम्बिनेशन मॉडल और अ ब्रिज मॉडल जहाँ हम दोनों चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज़ क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल मॉडल. जो भी मॉडल हमारे लिए बेस्ट होगा वो हमारा प्रोफेशनल हेल्प जो होगा, वी मस्ट नॉट शाई अवे फ्रॉम गोइंग टू अ प्रोफेशनल पर्सन, बिकॉज उसने वो ट्रिक मास्टर किया है. जैसे एक डॉक्टर के पास उसकी उसने पढ़ा होता है, एक इंजीनियर ने पढ़ा होता है. सो सिमिलरली हर एक इंसान ने उस चीज़ को जब तक वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं की होगी वो कैसे बता सकेगा आपको. सो एक स्ट्रक्चर्ड, एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल के पास जाकर हेल्प लेने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती. ये हमारे खुद की लाइफ को बेटर बनाएगा. सो बेस्ड ऑन द इश्यूज, चैलेंजर और द फेज इन योर लाइफ दैट यू आर इन, आपके पास ये मॉडल्स मेंटल हेल्थ से कम बैक करने के लिए आपको मिल सकते हैं. आइदर नॉन क्लिनिकल और क्लिनिकल, कोई भी बुरा मॉडल नहीं होता है. आपकी जो भी सिचुएशन में हो ये आपको ही बेटर बनाएगा, आपको ही आराम मिलेगा. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी टॉक अबाउट these therapies or counseling or NLP or life coaching, I would say, is about it helps you come out of your mental health issues, anxiety, depression, sleep disorder. Sleep disorder में सिर्फ ये नहीं है कि आपको insomnia है, नींद नहीं आ रही. There are people who are sleeping for days together. उन्हें लग रहा होता है कि बस सोना ही solution है, वो खुद से भाग रहे होते हैं. So either not getting sleep or sleeping too much, both are not good. So there could be any of these. Guys, a lot of us have seen कि हमें कई रात नींद नहीं आती, बीच रात में नींद खुल जाती. इतना भी क्या स्ट्रेस, इतना भी क्या काम कि अगर हम सो भी ना सकें या हमारी भूख खत्म हो जाती है, हम खाना पीना छोड़ देते हैं और वी स्टार्ट ईटिंग टू मच. पैनिक ईटिंग जिसको कहते हैं. यू हैव द अर्ज टू कीप ईटिंग समथिंग. कुछ ना कुछ मंच करने का मन कर रहा होता है. क्यों? एंड वी ऑल हैव गॉन थ्रू इट. कोई अपने दिल पे हाथ रख के बोल दे उसे कभी ऐसा फील नहीं हुआ है, दैट चर्न इन द स्टमक, वो पेट में बटरफ्लाइज इन द स्टमक, वो घबराहट, वो एंजाइटी. वी ऑल फाइट थ्रू इट आउट. सो वंस वी नो कि हमारे दिमाग हमें किस तरह से हमारे साथ खेल रहा है, द केमिकल लोचा इन आवर दिमाग इज देयर. सो वी हेल्प आर टू गेट ओवर दिस मेंटल इश्यूज. The second that we talked about was, this was the first benefit of NLP or life coaching or medical health. That was for getting over your mental health issues. Second, we talked about how it can benefit you in your business, in your work, in your client base, in your office, in your relationships. And third, we talked about how it can help you with your relationships as a person, आपके interpersonal relationship में, आपके घर पे, आपके रिश्तों पे, आपके friend circle पे, आपकी family पे. अगर आप ये समझ चुके होते हो कि कैसे बिहेव करना है आपके दिमाग को, आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं तो बहुत आप चिड़चिड़े हो जाओगे. आपको कोई भी बात आपको चिढ़ा देती है कि उसका ऐसे बिहेवियर. पर इफ़ यू ट्रेन योर माइंड इन अ मैनर कि आपको उन चीज़ों से दिक्कत नहीं होगी, तो आप ही पीसफुल होगे और आपके रिश्तों में सुधार आएगी. So third thing is it helps to benefit your relationship. And fourth that we talked about, it was as a general personality thing, your holistic personality, your aura or your persona, it increases and you become more content as a person. आप बहुत ज़्यादा given constraint में, ज़िंदगी perfect कभी नहीं होगी, बट उस गिवन कंस्ट्रेंट्स के बावजूद आप काफ़ी खुश रहोगे, आप में एक संतोष की भावना आ जाएगी. और क्या चाहिए ज़िंदगी से, और क्या चाहिए बताइए. कि आपके पास अच्छा है या बुरा है, आप उस पल को जी पा रहे हो, नहीं तो आप किसी भी पल को नहीं जी पा रहे होते. आपको हर एक पल को जीने की ज़रूरत है. राइट. वन ऑफ द फेमस थिंग और सेइंग दैट आई ऑल्सो डू से, अगर आपकी उम्र मान लो, एक बेसिक एज लाइन अगर मान लेते हैं 85-90 ईयर्स की अगर लाइफ है, सो अगर वो 85-90 ईयर्स हम इस इंतज़ार में ही गुजार दें कि कल अच्छा होगा और तब जिएंगे, तो हमने तो बहुत सारी ज़िंदगी खो दी. उस ज़िंदगी का क्या, हर पल जीना होता है, हर पल खुश होना होता है, हर पल ज़िंदगी को अनुभव करना होता है. ज़िंदगी हर एक फेज़ में ब्यूटीफुल है. सम पीपल से मैं हमेशा 18 till I die. No guys, 18 is beautiful, so is 19, so is 20,
so is 30, so is 40. So you need to keep living each पल. हमेशा आप अगर 18 ही जियोगे तब आप 20 कब जियोगे? आपको 20 भी तो जीना है. 20 जीने का भी एक ही वक्त मिला है, एक ही ज़िंदगी मिली है. हर फेज़ को जियो, हर स्वाद को चखो, हर इमोशंस को जियो. तभी लाइफ में वो एक फुलनेस की कॉन्सेप्ट आएगी. एंड दैट इज़ अगेन वेयर अ लाइफ कोच कम्स इन. एंड पहले के ज़माने में क्या होता था, गुरुजी होते थे. एंड गुरुजी से मेरे वो तांत्रिक बाबा जी वाला बात नहीं कह रही हूँ. गुरुजी होते थे जो हमें स्पिरिचुअलिटी, हमारे सोल को फिल करने की बात करते थे. उस समय हमारे वर्ल्ड में इतना प्रेशर या क्योस नहीं होता था. नाउ दैट हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय प्रोफेशनल पीपल who can help you handle those cases. I'll give you some example of the kind of people I deal with. कोई आता है कहता है मेरे ऑफिस में इतना प्रेशर चल रहा है, मुझे भी जॉब की सिक्योरिटी भी नहीं लग रही है, मैं कैसे लाइफ को ऑर्गेनाइज करूँ. एट द सेम टाइम माई स्पाउस शी वॉन्ट्स टू बाई अ मच बिगर हाउस. मैं ये प्रेशर नहीं हैंडल कर सकता हूँ. मैं इसको आप मेरे को कैसे हेल्प कर सकते हो इस फेज़ को टाइड ओवर करने में. सो देन वी वुड वर्क इन अ मैनर दोनों एस्पेक्ट पे. How to improve yourself as a life coach, what we would do is how to improve yourself to work and stay peaceful or efficient at work. At the same time आप अपने घर के एक्सपेक्टेशन, इमोशंस, लोगों को कैसे किस तरह से हैंडल करो सो दैट वो भी खुश रहे और उस प्रेशर में ना हो. So it works in both the ways. We do a lot of work with kids or teenager also. उनके प्रेशर, उन्हें लगता है. I remember there were cases in my school colleges where I have seen people कि एक एग्ज़ाम फेल करके and they committed suicide. उस समय शायद हमें यही लगता है यही एंड ऑफ द वर्ल्ड है. बट आज पीछे मुड़ के देखो लगता है ओ माय गॉड, उस एग्ज़ाम के लिए इतना प्रेशर में कैसे आ सकती थी, उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा. बट उस पोजीशन पे हम कुछ और देख ही नहीं पाते हैं. सो अगेन वी डू अ लॉट ऑफ वर्क विद दीज किड्स, टीनेजर, सो दैट उन्हें उस पूरे अप्रोच या होलिस्टिक चीज़ों से बताया जा सके कि लाइफ को देयर इज़ मोर टू लाइफ, देयर इज़ अ लॉट मोर. मे बी यू डोंट फिट इन टू दैट, मे बी यू आर मेंट टू डू. एक सिंपल सी स्टोरी सुनाती हूँ. देयर वॉज अ फादर जो उसकी बेटी को एक कार देता है. बहुत पुरानी कार थी उसकी. व्हेन शी टर्न्ड 18 उसको वो कार देता है, कार की चाबी दे के बोलता है ये लो, आज से ये कार तुम्हारी हुई. वो उस कार को देख के पहले तो बहुत खुश होती है कि मुझे कार मिल गई. बट देन शी गेट्स सैड एंड शी सेज ये तो बहुत पुरानी कार है, मैं इस कार का क्या करूँगी. फिर वो उसको जाती है कि इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं, मैं इसे बेच देती हूँ. जब वो बेचने जाती है तो उस कार के उससे बहुत कम पैसे मिल रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत पुरानी कार थी. तो उससे लगा यार इससे तो मैं कबाड़ में भी बेचूंगी तो भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा. वो बहुत दुखी होकर आती है. फिर किसी दिन उससे किसी फ्रेंड ने बोलता है कि तुम एक वहाँ पे क्लब है, वहाँ पे जाके देखो, हो सकता है कोई खरीद ले तुम्हारी कार. वहाँ पे जब वो जाती है तो उसे उस क्लब में उस कार के इतने ज़्यादा, जितने उस कार की वैल्यू भी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा पैसे मिलते हैं क्योंकि वो क्लब कार एंटीक कार्स को खोज रही होती है. और ये मॉडल, पुराना मॉडल, एंटीक मॉडल था जो बहुत सारे जगह अब अवेलेबल भी नहीं था. सो शी वॉज गिवन मोर देन 100 times what she would have imagined. And when she comes back to her father, she tells ki, Dad, look, this is the price they are quoting for it. And he smiled and he said, बेटा, this is what I wanted you to learn. आपकी प्राइस ये नहीं है जो आप सोच रहे हो या दुनिया लगा रही. अगर आपको वहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, मे बी यू आर फिट समवेयर एल्स. एक रद्दी या कबाड़ वाला आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, मगर एक एंटीक कलेक्शन वाला आपको 1000 गुना वैल्यू दे रहा है. तो एक दरवाज़ा बंद होने से, एक रास्ता बंद होने से, एक जगह रिजेक्शन आने से, डोंट फील इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड. यू आर स्टिल वर्दी ऑफ थिंग्स. You are still beautiful, you are still successful, you are still peaceful. कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है लाइफ का. And why am I giving all these stories? Because again, this is a way, as it impacts. अगर हम कोई एक स्टोरी सुनते हैं, कोई एक रिलेटेबल कॉन्वर्सेशन करते हैं एक दूसरे से, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा जाकर बैठ जाती हैं. एंड दिस इज़ द रियल लाइफ एग्जाम्पल. एवरी टाइम यू गाइज वुड थिंक दैट यू आर वर्थलेस. आई एम श्योर अब आपको इस कार की स्टोरी हमेशा याद आएगी कि कबाड़ी वाला आपका वैल्यू नहीं लगा सकेगा, मगर एक एंटीक कलेक्शन वाला आपकी गाड़ी का बहुत वैल्यू लगाएगा. सो गो टू द राइट पीपल. डोंट फील दैट यू आर वर्थलेस. गो टू द राइट पीपल. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू अंडरस्टैंड.
So, since we have been talking a lot about this mental health and the ways life coach या NLP या therapies या medicines help कर सकती हैं, in case you guys have any queries or questions, you can quickly put it on the chat box and I would love to take it. Let me just see if we have some questions. Oh wow, there are a lot of comments coming here. Yes. प्लीज़ शेयर गोल्ड होना ज़रूरी है. यस, बिल्कुल ज़रूरी है. उर्मिला घोष जी, आपने बोला है कि गोल होना ज़रूरी है. बिल्कुल, बिना एक पर्पस से, बिना एक गोल के बड़ा मुश्किल होता है ज़िंदगी में जीना. यूथ सफ़र्स अ लॉट. यस, वेलकम. फिर आपने कहा है लेट्स टॉक ऑन मेंटल हेल्थ लाइक फिज़िकल हेल्थ. बहुत ज़रूरी है, बहुत सही बात की है. बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं. आप लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे हैं. वेरी हैप्पी टू रिसीव देम एंड रीड देम. मैंने शायद पहले इतने सारे पॉइंटर्स देखे नहीं थे. काफ़ी सारे कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं. सॉरी, आई हैव नॉट सीन दीज बिफोर. आई वॉज बिजी इन चैटिंग विद यू गाइज. Very interesting things that's written in the entire chat box. So happy to be reading all those things and lovely to read the comments. Feel free to drop your comments even otherwise. I'm sure Dr. Harish ने इतने अच्छे speakers ला के रखे, इतने अच्छे methodologies ला के रखी है, so that you guys can always get benefited from the laughter therapy, yoga, meditation, clinical, non-clinical, all kind of health. Talk about mental health. It's not just about be vocal about local. It's also be vocal about the mental health. That's very important. Vocal about local. Your local is yourself. So be vocal about your local, which is your mind. That's also very important as we celebrate this Independence Day and being Atmanirbhar Bharat. That's very important, guys. So after having said all these things, drop us a mail, message, note whenever you guys feel like that you need help, that you need support, that you need us, or if you just want to talk to us, feel free to do that. We would love to help you. We would love to stand together, because ये हम सब हैं. आप हैं, मैं हूँ. एक another concept is Ubuntu. I am because we are. मैं वो हूँ जो हम सब हैं. मैं अकेले कुछ नहीं हूँ. And this goes together for everyone. So हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है. So feel free to talk to us. Feel free to share your stories. Feel free to inspire others. That's very important. And on that note, I would say that it was lovely talking to you all. I would wait for the feedback. I would wait for your comments. I would wait for things to stay happy and content at your end. And let's keep wishing each other positivity, sharing each other the positivity, and like Dr. Harish always says, keep laughing, keep spreading happiness and laughter. So thank you guys. Thank you for all your time. Thank you for listening me out. Feel free to reach out to me, myself Aparajita Prasad, and I am just a click away. I am there on Facebook. I am there on LinkedIn. You can connect with me anytime. Else Dr. Harish can help you connect with me. So with that note, I would sign off now, and very nice meeting you guys. So namaskar, and once again, happy Independence Day. Stay happy, stay safe, keep living and happily.